সৃজন খবর বাংলা, খবর যেখানে জীবনের কথা বলে। বাংলার মাটিতে অনেক বড় বড় সন্ত মহাপুরুষ এসেছেন। এই ধরিত্রী থেকেই তারা অনেক দিশা দেখিয়েছেন। জগৎগুরু শঙ্করাচার্য স্বামী স্বরূপানন্দ সরস্বতীও কলকাতার মাটিতেই দীক্ষা নিয়েছেন। তাই এই ভূমি থেকেই ধর্মের আরও প্রসার হোক। মঙ্গলবার প্রথম কন্যগড়ে এসে একথাই শুনিয়ে গেলেন বর্তমান দ্বারকা সারদাপীঠের শঙ্করাচার্য স্বামী সদানন্দ সরস্বতী মহারাজ। শঙ্করাচার্য হওয়ার পর ওই দিনই তিনি প্রথম কন্যগড় রাজরাজেশ্বরী সেবা মঠে এলেন। তাই রাজরাজেশ্বরী সেবা মঠের পক্ষ থেকে শঙ্করাচার্য সদানন্দ সরস্বতী মহারাজকে স্বাগত জানাতে কন্যগড় সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির থেকে বিশাল শোভাযাত্রা বের হয়। মহিলা ভক্তরা শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, ফুল ও গোলাপের পাপড়ি ছিটিয়ে তাকে স্বাগত জানান। ছিল ব্যান্ড, ঢাক ও অন্যান্য বাজনা। জিটি রোডের দুধারে অসংখ্য মানুষ সেই শোভাযাত্রা প্রত্যক্ষ করেন। হর হর মহাদেব ধ্বনিতে ভক্তরা আবেগে ভাসতে থাকেন। খনামা এদিন গোটা রাস্তা ভেপু বাজিয়ে আসেন। মঠে এসে মা রাজরাজেশ্বরী দেবীকে আরতিও করেন। সদানন্দ সরস্বতী এদিন শঙ্করাচার্য মঠের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী স্বরূপানন্দ সরস্বতীর মূর্তিতে প্রণামও করেন। পরে ভক্তদের উদ্দেশ্যে প্রবচন দিয়ে চলে যান রিষ্টা প্রেম মন্দিরে। এদিন শঙ্করাচার্য সদানন্দ সরস্বতী উপস্থিত সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, গীতা পাঠ রাজনীতির জন্য নয়, গীতা সামাজিক চেতনা বাড়ায়। তাই প্রত্যেক মানুষেরই গীতা পাঠ করা উচিত। এতে আমাদের চেতনা জাগ্রত হবে। তাই একে ছোট বয়স থেকে পাঠ্যক্রম বা পাঠ্যসূচিতে আনা উচিত। তিনি আরও বলেন, ধর্ম আছে বলেই আমরা বেঁচে আছি। অনেক বিধর্মী বিদেশিরা কয়েকশো বছর ধরে বারবার সনাতন ধর্মকে নষ্ট করার চেষ্টা করছে। কিন্তু সনাতন ধর্ম এমন একটি ধর্ম যাকে কেউ কোনোদিনই নষ্ট করতে পারেনি আর পারবেও না। কারণ সনাতন ধর্ম অজর, অমর ও শাশ্বত। অনেকে আবার একে নষ্ট করার বারবার চক্রান্ত করছে। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষদের এই পরম্পরা ও সিদ্ধান্ত ত্যাগ করা উচিত নয়। যারা ষড়যন্ত্র করছে তাদের সেই চেষ্টা সফল হবে না, সেই চেষ্টা ফেল করবে। কন্যগড় রাজরাজেশ্বরী সেবা মঠের প্রধান পুরোহিত সচ্চি স্বরূপ এদিন বলেন, দ্বারকা সারদাপীঠের শঙ্করাচার্য প্রথমবার বাংলা এলেন। উনি পুরো দেশ ও বাংলার মানুষের জন্য আশীর্বাদ দিয়ে গেলেন, যাতে সবার মধ্যে প্রেম ও সৌহার্দ্য বজায় থাকে। আমরা খবরের পরবর্তী অংশে আসছি একটি বিরতির পর। নবগ্রাম পিপলস কোঅপারেটিভ ব্যাংক, আধুনিক ব্যাংকিং পরিষেবার যাবতীয় সুযোগ। আপনার ব্যাংক, আপনার পরিবারের ব্যাংক। কন্যগড় মাদার ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, affiliated to Central Board of Secondary Education, নিউ দিল্লি। অ্যাডমিশন গোয়িং অন। ওম জুয়েলার্সের সোনার পরশে পাবে আপনার সৌন্দর্য অনন্য রূপ। কন্যগড়ের ওম জুয়েলার্স। নবগ্রাম ইন্ডেন প্রতিদিন 24 ঘন্টা আপনাদের সেবায়। ডোমেস্টিক ছাড়াও কমার্শিয়াল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সার্ভিসও দেওয়া হয়।
পৌরসভা পরিচালিত সপ্তদশ কোন্নগর বইমেলা 6 থেকে 14 জানুয়ারি। কালীতলা মাঠে বইমেলা সাংস্কৃতিক মঞ্চে প্রতিদিন সন্ধ্যায় থাকছে বাংলার স্বনামধন্য সঙ্গীত শিল্পীদের নিয়ে সঙ্গীতানুষ্ঠান। প্রত্যেকে একটি করে বই কিনুন, বই পড়ুন ও বই উপহার দিন। अभी हम सभी के सदगुरुदेव के दर्शन करने, पूजन करने शंकराचार्य जी वहाँ जा रहे हैं और वहाँ से यहीं आपके बीच में आएंगे। यहाँ पालिका पूजन का काम कार्य संपन्न होगा। आप सभी लोग संक्षिप्त आशीर्वचन का भी लाभ यहाँ लेंगे। कृपया थोड़ी देर और शांति से यहाँ बैठे रहें। राम राम जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, जिनका कलकत्ता वासियों ने लगभग 70-75 साल तक दर्शन किया। शंकराचार्य बनने के पहले से ही 1950 से गुरु जी कलकत्ता आते रहे। दंड संन्यास दीक्षा यही हुई गुरु जी की कलकत्ता। 1950 में संन्यास दीक्षा हुई। तो ये बहुत बड़े पुण्य का फल है, मनुष्य का जन्म हो जाना और फिर अच्छे गुरु का मिल जाना, अच्छे माता पिता का मिल जाना, ये बहुत दुर्लभ वस्तु है, बहुत ही दुर्लभ है। उन जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जो आज सूक्ष्म रूप से हमारे सामने विद्यमान हैं और देह के रूप में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन आप सबको, हम सबको जगदम्बा की गोद में छोड़ करके गए। कि कौन किसके लिए करके गए? इतना बड़ा आश्रम किसके लिए बना करके गए हैं? निर्माण क्यों किया? हमारे आपके लिए, आप सब लोगों के लिए। उनके रहते हुए न रहते हुए, उनकी उपस्थिति हो और चाहे ना हो, जगदम्बा की आराधना आप लोग करते रहना। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने हमें सन्मार्ग पर चलने के लिए, जगदम्बा की आराधना करने के लिए मणिद्वीप निवासिनी भगवती की स्थापना कोन्नगर कलकत्ता में की। पर चलने की प्रेरणा दे। बंग भूमि में बड़े बड़े संत महंत महापुरुषों ने दिशा निर्देश दिया है। बंगाल की धरती में इसी तरह से धर्म का और अधिक प्रचार प्रसार हो और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसमें धर्म का जागरण हो। इसलिए वर्तमान में जो हम जी रहे हैं वो धर्म के अनुसार जिएं तो बालकों में भी धर्म का प्रवेश होगा। गुरुजी, कुछ लोग सनातन धर्म को प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कुछ लोग सनातन धर्म पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं देश में, इनको क्या? नहीं, बड़े बड़े प्रतिबंध लगाने वाले चले गए, वो नहीं लगा पाए तो ये क्या लगाएंगे? धर्म का नाम पर जो देश और विश्व में जो अनाचार चल रहा है, सनातन धर्म के को मिटाने वालों ने, विधर्मियों ने कितने कितने वर्ष तक हमारे देश में शासन किया, आपको मालूम है ना? सैकड़ों धर्म के नाम पर देश में अनाचार हो रहा है, क्या बताएंगे इसके तुम बारे में? एक प्रश्न का उत्तर देने नहीं देते और दूसरा बोल देते हो। पहले उनका प्रश्न हो जाए। तो सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए विधर्मियों ने कोई कमी रखी क्या? सैकड़ों वर्ष तक राज्य किया हमारे ऊपर विधर्मियों ने। अंग्रेजों का राज्य तो अभी का है, 75 साल पहले का। सनातन धर्म नष्ट हुआ क्या? न होने वाला है। सनातन शब्द का अर्थ ही है जो कभी नष्ट ना हो, अजर अमर है, शाश्वत है। धर्म का नाम पर अब बोलो देश में जो हो रहा है अनाचार, इसके विषय में क्या भाव विचार है? हाँ, ये लोगों का षड्यंत्र है, उनकी बातों में नहीं आना चाहिए
और हमें अपनी परंपरा और अपना सिद्धांत नहीं त्यागना चाहिए। हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी किस धर्म का पालन करते थे, हमें उसी का करना चाहिए। तो इनका षड्यंत्र हमारे ऊपर काम नहीं करेगा, फेल हो जाएगा। बहुत सी विदेशी ताकतें हैं जो सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें बचना चाहिए। ठीक है गुरुजी की गीता पाठ केवल सामाजिक चेतना है या फिर इसका कोई राजनीतिकरण भी? बिल्कुल राजनीतिकरण नहीं है, सामाजिक चेतना है। मनुष्य तो सिलेबस का अंतर्भुक्त करने का जरूरी है। हाँ, मनुष्य मात्र के लिए गीता जी है और जैसा वो कह रहे हैं गीता जी हमारे पाठ्यक्रम में आना चाहिए। मनुष्य मात्र के लिए गीता है, किसी एक के लिए नहीं है। उसके उपदेश को आप पढ़ेंगे तो आपकी चेतना जागृत हो जाएगी। चलो बेटा। जगत गुरु शंकराचार्य द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जी महाराज की पहली बार शंकराचार्य बनने के बाद बंगाल यात्रा हुई है। उन्होंने पूरे समस्त देश के लिए और समस्त बंगवासियों के लिए आशीर्वाद दिया है, अपनी संस्कृति का लोग पालन कर सकें, प्यार सौहार्द भाव से रह सकें और धर्म का पालन करें। इस बात पर उन्होंने बहुत जोर दिया है। उन्होंने गंगा की आरती की है, माँ भगवती राजराजेश्वरी की आरती की। সৃজন খবর বাংলা নিউজ।